Hello, Hello, sir. hello. Good morning or good evening, whatsoever. There is good morning. Good evening to you. Here is good morning. How are you? Yeah, I'm good. How are you, sir? Same here. I'm good. So have you gone through any stuff or material or PDF? सर yesterday नहीं मैं कुछ भी किया cause फैमिली में जैसे थोड़ा लाइक लॉन्ग वीकेंड था इस बारी तो थोड़ा Okay, बिजी okay, थे. okay. So shall we start? Yes. Okay. Okay, okay. So in this part we were on operators. Okay. So No relational operator only. We were so I was just telling you that जो भी whatever you are having this greater than, less than, equal to, or not equal to, and assignment, which we have seen on this document as well, yes. spider. Okay. One program we have seen, uh, so this one. So we were clear that this is your assignment and this is your comparison operator. Okay, this will Yes. compare the values, whatever values are there, and accordingly it will give true and false, and whatever sentence you have written or statements you have written, they will be printed inside Yeah. that particular loop or Yeah. condition statement. Okay, now coming back to other operators. So one thing is that you can give here multiple greater than, equal to, less than, equal to signs as well. Okay, and number of signs between two numbers. Okay, ठीक. Yeah. then coming to your logical operators. Okay, so logical operators means or and not, or if any one of the operand is true, then the condition becomes true. Okay, let's suppose I'm having two values, a and b, or I can say uh, any numbers, 7 or 10 or anything. So if I'm comparing those two things, um, and checking if both the conditions are true or false. So if any one condition is true from both the conditions, then the final result will Okay. be true. Okay, The true. Yeah. true. Any one condition can be true from both the things. Okay, that's why we are using or. बोलते ना in Hindi we say या तो ये kind of thing, Yeah. in ठीक है. that way. And में क्या होता है, it should be both the conditions should be true, or if you have given three conditions, four conditions, five conditions, so all the conditions should be true to get the final conclusion as true. अगर final conclusion true चाहिए तो you should give all the operands, or Conditions should be all the conditions should be true. true. ठीक है. Now in not, this is a third logical operator, not. So not means if I'm assigning exclamation mark before a variable, such as uh, let's suppose you can say a not equal to 5, means a 5 के बराबर नहीं है, तो ये condition execute करे. Let's suppose I have given 5, a equal to 6, ऊपर initialize कर दिया a equal to 6. Now I am checking if a not equal to 5. So yes, a is not equal to 5 because a's value is already 6. So it will print true, or that Yeah. if condition will be printed. So not means ठीक. reverse the state of the condition of operand. जो भी आपने condition दी है या state दी है, उसका opposite होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. अब इसमें अगर एग्जाम्पल गिवन है तो वी विल टेक दैट एग्जाम्पल ओनली, और एस वी विल क्रिएट आवर ओन. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं गिवन है एंड और नॉट का. हम एक काम करते हैं, ठीक. यहाँ पर ही एक और कंडीशन बनाते हैं और उसमें दे देते हैं इफ
a not equal to let's suppose I'm giving 9 and I want to print something. Print a की वैल्यू प्रिंट करते हैं. Now we can just save this. Now just see this part only in this output here, because in another statement you will get a equal to 10. So just look around the first statement only. देखना यहाँ पर जो ये a equal to 10 है, वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से आया है. क्यों? क्योंकि I have given a not equal to 9. तो ऑब्वियसली बात 10 not equal to 9, 10 कभी भी 9 के बराबर नहीं होगा, तो वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. और अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज आई एम गिविंग 10, ठीक है, तो ये वो है इस पार्ट प्रिंट जो भी है न्यू या कुछ भी ऐसा यहाँ पर मार्कर दे देना जिससे ये पता चले कि ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट दूसरे वाले स्टेटमेंट से थोड़ा सा अलग है. कौन सा वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है बेसिकली हम वो चेक करना चाहते हैं. बाकी यहाँ पर स्टेटमेंट तो हम इन दिस स्टेटमेंट वी कैन गिव एनीथिंग, ठीक है, just to see that difference between two. That's why I'm giving the new, writing the new keyword. now यहाँ पे देखना a equal to 10 प्रिंट हो रहा है. क्यों? क्योंकि अब ये नहीं प्रिंट हुआ बिकॉज 10 नॉट इक्वल टू 10 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 हमेशा इक्वल टू 10 होता है. तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इट विल गो इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक, ठीक है. तो न्यू a इक्वल टू 10, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ इसके लिए नॉट इक्वल टू 10, ठीक है. अब इसके बाद हम एंड पे आते हैं. एंड और था, तो इफ यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल दे देता हूँ. अब आप एक जो वेरिएबल है आप दो वेरिएबल को ऐसे भी असाइन कर सकते हो, 10, 12, ठीक है. तो या तो फिर ऐसे ना असाइन करके हम नॉर्मल वे में ऐसे भी असाइन करते हैं, अलग करके ऐसे, चाहे वैसे दें चाहे वैसे दें, बात बराबर है. तो मैं ऐसे देना चाहता हूँ. अब मैं चेक करता हूँ कि a इक्वल टू 10 है एंड b इक्वल टू 12 है. क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आई विल बी एबल टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर a इक्वल टू a, और a के बाद में फिर दूसरा भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ b इक्वल टू b, ठीक है. नाउ वी विल जस्ट यू कैन सी a 10 है और b 12 है. So just look at here कि a बराबर 10 means a is equal to 10 means this is true and this is also true. That's why it is giving me this statement. ठीक है. Both the conditions are true means the if condition is true. So we are able to print this statement. If I'm giving here or okay, instead of and I'm giving here or. Now what you have to do, you have to give else also because तभी वो प्रिंट करेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा लूप के. So I'm just taking this and copying this part. Okay, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ. I'm just giving new a and new b. So this will become b. Okay. इसको हम एक्जीक्यूट करते हैं. Now see, अभी भी उसने ये दिया कोई भी कंडीशन ट्रू है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसी कंडीशन पे आया. मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कुछ. Let me change this part. I'm just changing this 11 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30. So you can see both the conditions are not true.
ठीक है, जी both the condition are not true, that means it will go inside the else part. अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई, जो लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू हुई और ये कंडीशन फॉल्स है, और का मतलब क्या है, कोई भी एक ट्रू हो, कोई भी कोई एक भी एक ट्रू हो। ट्रू हो तो वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें नाउ सी आई एम गेटिंग दिस स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू थी तभी मुझे ये स्टेटमेंट मिला। ठीक है। Okay? तो इसका एक बुलियन चार्ट बनता है, और कि मैं आपको बना देता हूँ। आई कैन प्रिपेयर वन चार्ट है। There's the cursor. So and means अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई, suppose I am giving two operators A and B, मतलब कोई भी दो variables if I am giving, so that means if this is true and this is also true, so final conclusion will be, so output you will get ट्रू। true. Okay, if this is true and this is false, B is false, A is true, देन इट विल बी फॉल्स। then it will be false. I think so. You have got what I am trying to say. या Okay. या दैट या You have understood now. False, 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 true, false, फॉल्स and all the फॉल्स condition it will be फॉल्स false. अगर सिर्फ और सिर्फ both the conditions are true, it will true. It will be true. देन इट्स ट्रू। या So, just clear. और में क्या होता है? और अगर में वन कंडीशन का होना जरूरी है। वन का ट्रू होना जरूरी है, दोनों भी ट्रू हो तब भी ट्रू देगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तब भी ट्रू देगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब वो फॉल्स देगा, फॉल्स। उसी कंडीशन में फॉल्स देगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है मुझे आई वांट टू मेक यू क्लियर। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, these are similar like your let's suppose I am taking this assignment, x minus equal to 2, so you have seen this part here, in this I was giving yeah, here I was giving you y plus equal to world, I was typing this one. So similarly way, if I'm typing this way or this way, both the ways are equal. Okay, or else if I'm typing in this way, let's suppose I'm typing this way, y plus equal to 5, or if I'm typing y equal to y plus 5, so both the statements are same. या So this is your assignment operator. Okay, so this kind of statement can be written in this way, in this assignment format. So this is also an assignment of y plus 5 to 5 y. I'm assigning y plus 5 to y, and this is also an assignment assigning 5 to a variable which is y. Okay, now here in this screen, if you can see x minus equal to 2, that means x equal to x minus 2. Okay, ठीक है। this means x equal to x into 2, है ना? इसका भी मीनिंग यही है, क्योंकि ये भी असाइनमेंट ही है और ये भी असाइनमेंट है। असाइनमेंट कैसे? x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, है ना? और इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू x मॉड्यूलस 2। ठीक है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 2, मतलब x की स्क्वायर। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू x इंटीजर डिवीजन 2, है ना? फॉरवर्ड स्लैश 2 फॉरवर्ड स्लैश
2, तो ये भी जी असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये जितने भी सारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो इक्वल टू वाला होता है वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इन सबको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इक्वल टू को जी भी असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे हम इक्वल टू जी करते हुए आ रहे हैं। एंड इक्वल टू को भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, बस उसका नाम कैसे चेंज हो जाता है, इट इज कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का क्या कुछ समझना है, जैसे डिवीजन ऑपरेटर बिहेव्स डिफरेंटली विद इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। ठीक है, तो जब भी हम डिवीजन करते हैं किसी नंबर का किसी नंबर से, तो जी it will give you a integer if you are dividing one integer by integer. If you are या dividing one float by another float, मतलब decimal वाला number, if you are dividing by another decimal of number, तो decimal number divided by decimal number gives you a decimal number. ठीक है, जी और अगर if you are dividing an integer by decimal number, तो finally you will get decimal number. और अगर if you are dividing a decimal number by integer, then also you will get a decimal number. सिर्फ एक ही कंडीशन है जब यू विल गेट इंटीजर आउटपुट, कब, जब इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इंटीजर। या ठीक है, तो ऐसा है। शुड आई गिव यू वन एग्जांपल और इट इज ओके? इट इज ओके ओके ना, अंडरस्टूड ना? ठीक है, या देन इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, देन एडिशन ऑपरेटर बिहेव डिफरेंटली ऑन इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स। जैसे मैंने बताया था कि इफ यू आर गिविंग, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स 2 into 3, so it will give 6. If you are multiplying a string by a number, such as we have done, इट विल ऐड इट विल ऐड it will replicate 3 times. या Okay, it will not add, it will replicate. into की बात कर रहा हूँ, जैसे अच्छा मैंने इनटू की बात एडिशन में ठीक है। एडिशन में वो कॉन्कैटिनेट करेगा, कॉन्कैटिनेट मतलब ऐड करेगा। ठीक है, जी बट और उसमें रेप्लिकेट करेगा या सर आ गया यार मेरे को आगे आप ना, बताए थे। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है, ओके। देन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स। हम एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट इज कांस्टेंट्स, वेरिएबल और ऑपरेटर। जैसे मैंने कल बताया था, जब भी हम लिखेंगे a इक्वल टू 5 या कोई भी नंबर लिखेंगे या कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। फिर उसकी जी वैल्यू अगर किसी दूसरे स्टेटमेंट में यूज हो रही है, ठीक है, कहीं और यूज हो रही है, जैसे a इक्वल टू 5 को मैं कहीं और यूज कर रहा हूँ, तो a को कहीं और यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग समवेयर एल्स, तो दैट विल बिकम अ स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है तो यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल, 2 प्लस एक्स जो है वो मुझे क्या दे रहा है, एक ये मतलब 2 प्लस एक्स एक एक्सप्रेशन है ना, छोटा सा। जी और वैसे ही 50.8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ब्रैकेट में 20 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। मैं नंबर्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नंबर्स और वेरिएबल का जो भी कॉम्बिनेशन होगा ना, वो वो भी सर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट, अ यूनिट ऑफ कोड दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एक स्टेटमेंट है, जैसे प्रिंट वाला स्टेटमेंट हुआ, या मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, a इक्वल टू 10+5, जैसे मैं कल बोल रहा था c इक्वल टू a+b। ठीक है, मैंने कल एक एग्जांपल जी दिया होगा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, और तीसरी स्टेटमेंट में मैंने लिखा a इक्वल टू c इक्वल टू a+b। जी ठीक है, तो ये c इक्वल टू a+b का मतलब क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, वो हमको एक जी आउटपुट जनरेट करके देगा। तो सिमिलरली ठीक यहाँ पे एक एग्जांपल देखना, प्रिंट 90, ये मुझे एक आउटपुट देगा। x इक्वल टू ठीक 60+40, ये भी मुझे एक आउटपुट देगा। क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है, तो इसलिए वो एक जी स्टेटमेंट बन जाएगा, और कैलकुलेशन ठीक भी हो रही है इसलिए। ठीक है, ठीक है और जो ये एक्सप्रेशन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक बट इनका कोई ना कोई एक हमें कोई चीज चाहिए जिसमें हमको उसको स्टोर करना है बेसिकली, तभी वो आउटपुट जनरेट कर पाएगा। ठीक है, ठीक है उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एक्सप्रेशन इन केस ऑफ ऑपरेंड्स विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे ये ऑपरेंड है अभी, प्लस वाला, नहीं ये ऑपरेंड है जो ये कैलकुलेशन हो रही है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर।
ठीक है, जो भी अर्थमेटिक ये होते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। और जो भी ये वैल्यूज के ऊपर ये ऑपरेटर लग रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। तो इन केस ऑफ ऑपरेंड्स विद डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे 0.8 का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, और जो ठीक है 4 है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर तो जी वो क्या करेगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा उसकी। जैसे मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट मतलब जो बैकग्राउंड में टाइप कास्टिंग होती है, कि ठीक है लेट्स सपोज दिस इज फ्लोट, ये फ्लोट है और ये इंटीजर जी है। फिर इन दोनों का जो कैलकुलेशन होके आएगा वो भी क्या होगा, फ्लोट होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जी फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर फ्लोट देता है, या मतलब डेसिमल ठीक है डिवाइडेड बाय इंटीजर हमें जी फ्लोट देता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट जी होगा, बैकग्राउंड में वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट उसकी कर जो देगा। तो उसका डेटा ठीक टाइप है है, उसको बैकग्राउंड में फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। बट वो ठीक है चाहता तो वो जैसे 4 का डेटा टाइप इंटीजर है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करता ठीक है है ना, जी पर वो इंटीजर में उसको कन्वर्ट और नहीं कर वो रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक हायरार्की चलती है। सबसे नीचे होता है इंटीजर, उसके ऊपर होता है फ्लोट, फ्लोट के ऊपर होता जी है डबल, और जी डबल के ऊपर होता है स्ट्रिंग। यहाँ स्ट्रिंग को भूल जाओ अभी। तो ये तो हायरार्की होती है, इंटीजर के ऊपर फ्लोट और फ्लोट के ऊपर डबल। तो आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और फ्लोट को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हो। पर आप उल्टा प्रोसेस नहीं कर सकते, कभी भी आप डबल को फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकते और फ्लोट को कभी भी आप इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, क्यों? ठीक है क्योंकि जिसकी साइज, जैसे मान लो आपके पास बकेट है, ठीक है, 3-4 बकेट्स यू आर हैविंग। एक छोटी बकेट है और दूसरी बड़ी बकेट है और तीसरी उससे बड़ी बकेट है। तो जो बड़ी बकेट है उसमें ये दोनों बकेट्स जा सकती हैं आराम से, जी ठीक है, लेकिन जो बड़ी वाली बकेट है वो इन छोटी वाली बकेट्स में तो आ नहीं सकती, हम्म है ना। अगर मैं उस बकेट को यस बकेट के अंदर इंसर्ट करूंगा तो वो मतलब वो उसके अंदर फिक्स नहीं होगी, अगर, जी जी है ना, यू अंडरस्टूड ना। तो या उसी टाइप से ये है, इंटीजर एक छोटी बकेट है, वो फ्लोट के अंदर जा सकती है और लेकिन फ्लोट फ्लोट उसके अंदर अंदर नहीं नहीं आ जा सकता क्योंकि वो सकती। हायर प्रेसिडेंस या हाँ हाँ सर ये मैंने पढ़ा था हायर प्रेसिडेंस के हाँ, वो होते हैं भी जो एक बोल सकते हैं, लेकिन हायर प्रेसिडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑपरेटर्स के ऊपर। हम बात कर जी रहे हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, मतलब जो भी डेटा टाइप आप बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है हम डेटा टाइप्स के ऊपर ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, मतलब टाइप कास्टिंग होती ठीक है। है आप जो बोल ठीक रहे है हो प्रेसिडेंस, वो हम करते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस इनटू डिवाइड, ग्रेटर जी देन, जी ब्रैकेट्स, तो उनके ऊपर हम प्रेसिडेंस अप्लाई करते हैं। तो हाईएस्ट ठीक है प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स के बाद ब्रैकेट्स का होता है डिवाइड का, डिवाइड के बाद होता है इनटू का, इनटू के बाद होता है प्लस का, प्लस माइनस का, फिर प्लस का। तो ऐसे वो चलता है हाईएस्ट प्रेसिडेंस उसका। हम प्रेसिडेंस को कनेक्ट करते हैं ऑपरेटर्स के साथ, और जो टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, हम उसको कनेक्ट करते हैं डेटा टाइप्स के साथ, डेटा या टाइप के साथ नंबर्स के ठीक है साथ, या स्ट्रिंग्स के साथ भी बोलें तो ऐसा होता है। ठीक है ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया अभी। इंटीजर्स आर प्रमोटेड टू फ्लोट्स in case of multiple sub expressions in a single expression, general precedence rules apply। तो इसमें अब ये बोला, ये चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंस है, जो जनरल प्रेसिडेंस रूल लग रहे हैं, वो ठीक ऐसे है लग रहे हैं कि सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, ठीक है, उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है ब्रैकेट्स की, तो ये पहले ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो ये स्टेट एक्सप्रेशन बचेगा वो जाएगा डिवाइड के पास। तो सेकंड प्रेसिडेंस किसकी आएगी, डिवाइड की। तो इट विल अप्रोच डिवाइड, डिवाइड के बाद जो भी वैल्यू सॉल्व होगी वो जाएगा माइनस के पास, और फिर माइनस के बाद वो जाएगा प्लस के बाद, प्लस के पास। ठीक है, तो ऐसा वो ठीक है प्रेसिडेंस चलता है। ये लिखा भी हुआ है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो अभी मैं बोल ही रहा था कि ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेसिडेंस लगता है, इनटू, डिवाइड, जी मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जितने भी ये लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर,
तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर हम ये सारी चीजें प्रेसिडेंस अलाउ करते हैं। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? इसका एक्सपोनेंशियल का, मतलब नंबर टू अ पावर ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, रेज टू द पावर। अब इसमें इन्होंने एक चीज नहीं मेंशन, इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है। मैंने वो चीज क्या मेंशन नहीं की है कि यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लिखने थे, जो पैरेंथेसिस होते हैं। तो पैरेंथेसिस का जो सीक्वेंस होता है वो टॉप मोस्ट होता है, पहले हमेशा पैरेंथेसिस सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद इनका वो नंबर आता है, ठीक है। वो इसमें और I have already told you these few things. Write one Python statement per line. तो physical line मतलब single line interactive mode, or you can say single line execution of Python. ठीक है। फिर comment start with hash. तो single line comments hash से start होते हैं, ठीक है। Then you are having when entering statements in interactive mode, an extra blank line is treated as end of the indented block. तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं इंटरैक्टिव मोड में, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा सिंगल लाइन स्टेटमेंट, तो जब मैं उसको जब मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, और लाइन के एंड में जाके एंटर प्रेस करूंगा, तो उस एंटर को वो क्या समझेगा? एंड ऑफ द इंडेंटेड ब्लॉक। तो जो भी ब्लॉक आपने लिखा है एक लाइन का, वो समझेगा ये वाला ब्लॉक जो है वो एंड हो गया है, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उस एंटर का मतलब ये होता है। एंटर का मतलब ये नहीं होता है कि चलो एंटर दबाया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर का मतलब ये होता है प्रोग्रामिंग वे में, बैकग्राउंड में पाइथन उसको ऐसे समझता है कि अगर कोई एंटर प्रेस करेगा तो उसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, उसकी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है उनको, ठीक है। ये चीज है। then you are having white space in the beginning of a line is a part of indentation. जब मैं कल बता रहा था if I am executing the if statement, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो इंडेंटेशन वाला जो ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जी। तो वो जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इज अ पार्ट ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक आते हैं इंडेंटेशन, हमें मैनुअली नहीं देने होते हैं। हम अब अगर जैसे मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, बार बार स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो वो इंडेंटेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? यूजर इज प्रोवाइडिंग द स्पेस टू द प्रोग्राम, है ना, एंटरिंग द स्पेस इन द प्रोग्राम। बट जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपको व्हाइट स्पेसेस जनरेट करके दे, सम नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस, तो उसको हम बोलेंगे इंडेंटेशन, ठीक है। उस सेंस में ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्पेसेस, हाँ, ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्पेसेस। नेक्स्ट यू आर हैविंग इफ अ स्टेटमेंट रन्स इनटू मल्टीपल फिजिकल लाइंस, मतलब जैसे कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो मतलब एक स्क्रीन है, पूरी एक ऐसी स्क्रीन है, उसमें मैंने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब वो जहाँ पर वो स्क्रीन एंड हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग द स्पेस, आई हैव टू मूव लिटिल बिट राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पूरा स्टेटमेंट मेरी स्क्रीन पे दिखे, तो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं उसके स्टेटमेंट के एंड में एक स्लैश लगा दूंगा। स्लैश का मीनिंग ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट लाइन में। जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं ना इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो चुका, नाउ आई हैव टू स्टार्ट अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो फुल स्टॉप का मतलब है कि स्टेटमेंट एंड हो चुका है। ऐसे ही पाइथन में ये जो स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, उसका मतलब है ये वाली लाइन अभी चल रही है और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो दूसरी लाइन में हमने लिखा है, कंटिन्यू हो गया है। अगर आप ये स्लैश नहीं लगाओगे तो वो क्या समझेगा, पहली वाली लाइन खत्म हो चुकी है, अब आप जो नई लाइन में लिख रहे हो वो नया फ्रेश स्टेटमेंट है, नए लाइन में नया फ्रेश स्टेटमेंट है। पर हमें वैसा नहीं करना है, हमें वही वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू करना है, तो मुझे एक बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। आई हैव टू इंसर्ट वन बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो कि मेरी दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ओके। देन इनपुट आउटपुट, हाँ ये बिफोर 3.0 जो पाइथन का वर्जन है ना 3.0,
तो पाइथन के वर्जन होते हैं, जैसे आई एम राइटिंग दिस वर्जन्स है, versions of Python. So what all versions are there? It was started from 1.0 I think so. फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वर्जन बढ़ते गए, और यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं एडिंग 1.0 के बाद उन्होंने क्या किया, एक और वर्जन लाया 1.0.00, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा वर्जन आया, 1.0.1, कि ऐसे चलते गए। एक टाइम आया जब उन्होंने स्विच ओवर कर दिया इसमें 1.1 पे, फिर ठीक है। 1.0, या मतलब कोई भी एक नंबर, मतलब ये भी वर्जन के सब वर्जन इसको बोलते हैं। तो ठीक है। ये एक वर्जन है, ये उसका एक सब वर्जन है, और सब वर्जन का भी एक सब वर्जन है, ठीक है। ऐसे ठीक है, है। एक हायरार्की चलती है। देन ये जो वर्जन्स हैं, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकंड लेवल ऑफ वर्जन्स। तो उसमें क्या बोलते हैं, 2.0.0, फिर आया उसके बाद 2.0.1, फिर वो कन्वर्ट हो गए 1.0 में, ठीक है। ऐसे बहुत बार उन्होंने कन्वर्जन करते रहे, फिर वो पहुंचे 3 वाली सीरीज पे, 3.0.0, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो गए 3.1.0, और आगे कंटिन्यू होते रहे। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वर्जन, वो है 3.7.0, और कोई भी एक वर्जन ले लो, जैसे मैंने डाउनलोड किया है 3.7.4 आई थिंक सो, वर्जन का भी सब वर्जन। तो ये ऑलमोस्ट अपडेट होते रहते हैं, दीज आर गेटिंग अपडेटेड ऑन रेगुलर। 3.9 I हाँ, have maybe 3. 3.9 वो लेटेस्ट वर्जन है 3.9। और 3.9 में भी इफ यू कैन चेक ना, जब यू विल गो इनसाइड इट एंड यू विल चेक, तो उसके आगे भी कोई एक नंबर लगा होगा, 3 या फिर 4 या फिर 5, ऐसे कुछ नंबर लगा होगा उसके आगे भी, तो वर्जन के अंदर वर्जन, ठीक है। बेसिकली वो कोई ध्यान नहीं देता है, दैट इज हार्डली मैटर्स, वर्जन के अंदर वर्जन। हम बस कंसर्न होते हैं स्टार्टिंग टू लेटर 3.9 की, 3.8 की, 3.7 की, कौन सा वाला वर्जन, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 3.9 इज द लेटेस्ट वन। So now, if you can see, input-output facility helps to interact with end user to accomplish a desired task, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे देखें, ये मैंने जैसे नंबर दिया, ठीक है, 10 और 12। अब यहाँ पर मैं ये नंबर्स ना देखे, what I will do is that I will just write a equal to, I can comment it here, input, ठीक है, ब्रैकेट्स में। अब मैं यूजर से बोल रहा हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है। अब मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ, अब आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्लीज एंटर अ number. So at the runtime, when you are running the program, it is upon the user, or it is upon you, that what kind of number you want to give. So it is a dynamic thing. So earlier these things were what do you say, static one. ये जो है ना, ये static है, ठीक है। मैंने हार्ड कोड किया है उसको, हार्ड कोड मतलब फिक्स नंबर दे दिया मैंने उसको। अब मुझे कभी इन फ्यूचर इनको चेंज करना है, तो मैं इनको चेंज नहीं कर सकता किसी एक प्रोग्राम में, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है इन नंबर्स का, ठीक है। बट जब मैं ऐसे दूंगा इनपुट लेके यूजर से, जैसे हम बोलते हैं ना, उसमें देखा होगा जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जब हम यूजर से सिस्टम यूजर से हम इनपुट मांग रहे हैं, तो जब यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, तो जब रन टाइम होगा यहाँ पर, वो हमसे तो बोलेगा, वहाँ पे हम खुद अपनी वो लिख सकते हैं, अपनी हाँ, आउटपुट अपने इनपुट दे सकते अपनी हैं वैल्यू उसमें, दे सकते ठीक है। हैं।
अब यहाँ पे इनपुट पूछ लेगा, अब पूछ रहा है एंटर नंबर, आपको क्या नंबर देना है, मैंने बोला मुझे 10 देना है, फिर बोल रहा है एंटर नंबर, तो अगेन मैं 12 देता हूँ, ठीक है, तो उसने फिर मुझे ही आउटपुट दिया 10 और 12 के बेसिस पे। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट नंबर आपको पूछ रहा है, तो लेट्स सपोज आई एम गिविंग 23, ठीक है, नेक्स्ट आई एम गिविंग 34, तो अब वो आउटपुट कुछ दे रहा है, ठीक है, और मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं आपको ऐसा भी नंबर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ whenever I require, whenever I want to run a particular program, ठीक है, तो ये यूज है इनपुट का। अब दूसरी बात है यहाँ पर जो ये इनपुट है ये कब आया था, ये इनपुट जो है वो आया था came into existence in Python after Python existence after Python third version, you can say 3.0 version you can say, है ना। तो थर्ड वर्जन के बाद जितने सारे वर्जन है ना उसमें हम क्या करते हैं इनपुट यूज करते हैं, ठीक है, बट थर्ड वर्जन के पहले जब यूज होता था तो वो यूज होता था रॉ इनपुट, ठीक है, इनपुट की जगह पे क्या यूज होता था रॉ इनपुट। तो यही एक उनका डिफरेंस है कि ये 3.0 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था इनपुट, और 3.0 के पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ था रॉ इनपुट चलता था, इट वाज वर्किंग रॉ इनपुट। So whenever you are working on a previous version of Python such as 2.5 or 2.6, so you need to use this raw input, पर raw input है ना raw input, but third version के बाद हम input use करते हैं। सिंटेक्स दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, रॉ इनपुट लिखना है और इनपुट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रॉ इनपुट दे दें, पर वर्जन का हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्कैटिनेशन, हम कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था प्लस साइन यूज होता है, ऑपरेटर यूज होता है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए, टू ऐड टू स्ट्रिंग्स। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था पाइथन वर्ड लिखा था, तो पाइथन और वर्ड कॉन्कैट हो गया था, तो हम तो तब हमने क्या यूज किया था, हम डायरेक्ट यहाँ पे पाइथन और वर्ड पास कर रहे थे, बट अभी वो हम क्या कर रहे हैं इनपुट दे के पास कर रहे हैं रॉ इनपुट। यहाँ पे आप चाहो तो इनपुट भी दे सकते हो थर्ड वर्जन के बाद, अगर थर्ड वर्जन से ऊपर वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव इनपुट, ठीक है। रॉ इनपुट बहुत पुराना है, मतलब बिफोर थर्ड वर्जन, तो दोनों चीजें यूज हो सकती हैं और यूजर से हम इनपुट लेके उन दोनों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी वही है, अब इसमें नंबर्स में देखो ये 78 है और ये 100 है, तो 78 को जब मैं कॉन्कैट करूंगा 100 से, तो देखो मुझे ऐसे कॉन्कैट करके देता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ओके, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, आना क्या चाहिए 178 आना चाहिए, 178। दैट मीन्स जो ये रॉ इनपुट है, ये जो रॉ इनपुट है या जो इनपुट है, ये जो हम इनपुट ले रहे हैं ये वाला, या ये जो रॉ इनपुट ले रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये हमेशा जो भी आप इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग हमेशा कॉन्कैट होती है, वो नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं लेगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू अ नंबर, if you want to convert that string into a number, then you have to pass int int, उसको इनपुट को int के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट दिया तो उसके आगे मैं क्या करूंगा int लगा दूंगा, ठीक है, तो ये इनपुट जो है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने की वाली बात ये है कि यहाँ पर मैंने तो इंट दिया नहीं जी, और इनपुट हमेशा
रॉ स्ट्रिंग लेता है, तो जी जब उसने रॉ स्ट्रिंग लिया तो उसने इस 23 को नंबर क्यों नहीं कंसिडर किया, है ना। अब हम चेक करते हैं टाइप ऑफ ए किस टाइप का है, पता चल जाएगा हमको। ए स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का पर उस स्ट्रिंग में जा क्या रहा है, नंबर जा रहा है, नंबर। और ये जी नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इन ए और बी को सी वेरिएबल में ऐड करता हूँ, ए और बी को अगर मैं सी वेरिएबल में ऐड करूंगा, तो दो नंबर का प्लस होना चाहिए, जी 23 और 34 का प्लस होना चाहिए, तो मुझे ठीक 57 है। मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या, 2334, स्ट्रिंग टू। जी 2334 मिलेगा। अब देखना प्रिंट करके हम देखते हैं यहाँ पर सी को, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर मैं 23 देता हूँ, और थर्ड नंबर सेकंड नंबर 34 दिया, तो यहाँ पे देखना मुझे क्या मिला, 2334। क्यों, क्योंकि उसने इसको स्ट्रिंग माना। अब मैं चाहूँ जी उसको स्ट्रिंग नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उसको इनपुट ही इंटीजर के फॉर्मेट में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो मुझे देगा 57। Why it is generating that? Now you see it is giving 57. या So this is the use of input int, एंड। and you can also give float. यहाँ पे float भी दे सकते हो, give float also, ठीक है। एक को फ्लोट दे सकते हैं, एक को इंटीजर भी दे सकते हैं, और दोनों को भी हम चाहें तो फ्लोट दे सकते हैं। So यहाँ पे मैंने दोनों को फ्लोट दिया, तो 23.5 और दूसरे को मैं 33.9। तो अब देखना दोनों को ऐड करके उसने दिया मुझे 58। 58.4, ठीक है। जी अब यहाँ पे उन्होंने देखो इंट में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, ठीक है। तो इंट लगाएंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। रॉ इनपुट में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा जाता है, तो टाइपकास्ट द स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर टू एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक टाइप। तो मैंने बता दिया, रॉ इनपुट लो या इनपुट लो, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा। फिर अगर आपको टाइपकास्ट करना है, ठीक है, तो आपको टाइपकास्ट करना है तो आपको आगे उसके पहले कुछ भी देना पड़ेगा, जैसे इंट देना पड़ेगा, जैसे आई हैव गिवन इंट, और यू हैव टू गिव फ्लोट आल्सो इफ यू नीड, तो आप फ्लोट दे दो उसको टाइपकास्ट करना है तो ये टाइपकास्टिंग है बेसिकली। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग से मैं इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्ट्रिंग से मैं किस में टाइपकास्ट कर रहा हूँ, फ्लोट में, फ्लोट। ठीक है। तो ये है रॉ इनपुट, इनपुट, टाइपकास्टिंग, इंटीजर, फ्लोट, और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स इसमें मिक्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड। इनपुट मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ये थर्ड वर्जन के बाद यूज होने लगा, तो will supply 2.5 2x, तो इंटरनली इट विल टाइपकास्ट द थिंग्स, और उसको वो यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेट करके जो नंबर आएगा 2.5 वो x में जाके स्टोर होगा, ठीक है। जी अब यहाँ से आउटपुट, ये तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग पार्ट कि ये नहीं वो एक्सप्रेशन तो है, या तो स्टार्टिंग का वो। Now these are a few programs, okay. Simple, these ठीक are है। very simple programs. Add the numbers, add the four numbers, multiply the three numbers, average out the three numbers. five numbers लो, उसको average करो, divide by 5 करो, आपको average मिल जाएगा। So these are simple ठीक है। mathematical formulas which you have to give, ठीक है। अगर
If you want to display the age after 15 years, so simple, you have to do the calculation. If you want the power of a to the power 3, ठीक है, तो यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा a की वैल्यू, लेट सपोज आई एम गिविंग 5 और 10, ठीक है, तो ठीक है 5 की पावर 3 और मैंने कभी दिया 10 एज एन इनपुट, तो 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो a की हमेशा वैल्यू दूंगा मैं साइड इनटू साइड, स्क्वायर का साइड इनटू साइड होता है फॉर्मूला, तो साइड की ठीक है मैंने लेंथ दी एज 5, तो 5 इंटू 5 25। अगर यूजर चाहे कोई और नंबर देना तो वो भी दे सकता है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर देना है तो a इंटू बी, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ x टू द पावर n, जैसे ये a टू द पावर 3 है वैसे ये x टू द पावर n है, तो यहाँ पर हमें क्या है, x भी अननोन है और n भी अननोन है, दोनों चीजें हमारे पास अननोन है। तो हम क्या करेंगे, एक पावर फंक्शन यूज करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में एक पावर फंक्शन होता है, मतलब बेसिकली पाइथन में होता है, मैथ्स में नहीं होता है। तो पाइथन में ये पावर फंक्शन होता है। पावर में क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज देंगे, जैसे जैसे मैंने दिया पावर, ब्रैकेट में मैं दूंगा, आई एम जस्ट गिविंग 3,4, ओके। तो इसका मीनिंग ये है 3 इंटू 3, ठीक है, 3 की पावर 4। तो जो पहला वाला नंबर है वो है x और मींस x, और वो है दूसरा n है n, तो x की पावर n, तो ये चीज हम पावर में यूज होगा, ठीक है। अब उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यू हैव टू गिव द इनपुट फ्रॉम यूजर, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, लेंथ एंड ब्रेथ, फिर उसको लेंथ और ब्रेथ को यू हैव टू गिव इन द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो उसको आप स्टेटमेंट में सेव करोगे किसी एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल एरिया कहलाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया नहीं है पेरीमीटर है, तो हम ये पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा, उस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ सर्कल, तो ऐसे ही आर हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे एक्सप्रेशन का, स्टेटमेंट में सेव करेंगे, वेरिएबल में सेव करेंगे, उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पर यू कैन राइट मैथ डॉट पाई, ठीक है, मैथ MATH मैथ डॉट, ठीक है, ऑल राइट जी या जी ओके। देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, a plus b, so you are giving 2 variables, a minus b, you are storing inside a variable। तो बेसिकली ये होता है, हम स्वैप कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, तो वैल्यूज को जी, और उनको स्टोर कर रहे हैं एक नया वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल में। You just try this. I can show you, but I want that you can try it out after this class, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं you can try it out। तो इसका बेसिकली मीन ये है कि लेट सपोज a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाए 6 और b की वैल्यू क्या हो जाए 5, मतलब स्वैप हो जाए, वैल्यू स्वैप हो जाए आपस में, स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप करने के लिए उसका फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करके देखना कि क्या आ रहा है। जैसे मैंने 5 + 6 किया तो 11 आया, तो a की वैल्यू 11 हो गई। फिर 11 माइनस बी होगा, क्योंकि a की वैल्यू 11 हो चुकी है, 11 माइनस बी मतलब 11 माइनस 6, तो b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5, तो पहले b की वैल्यू 6 थी, अब b की वैल्यू 5 हो जाएगी। और लास्ट स्टेप में a की वैल्यू 11 थी, b की वैल्यू क्या थी 5, अभी 5 हुई ना यहाँ पर, 10 माइनस 5 6, तो अब a की वैल्यू 6 हो गई, पहले a की वैल्यू 5 थी, तो ऐसे करके हमने थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया। हम स्वैपिंग में थर्ड वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल ना यूज करके दो वेरिएबल से ही स्वैप करवाना कर लिया उसको, ठीक है। यू आर कफिंग है ना, या वो ऑल कभी राइट ऐसे ना, होता है। अच्छा अच्छा ठीक है या एवरीथिंग इज गुड, राइट, ओके, ठीक
देन ये आवर्स और मिनट्स का भी है, तो यू नो आवर्स क्या होते हैं, आवर्स सेकंड्स मतलब 60 सेकंड्स पूरे, और वो 60 सेकंड्स मिनट बनाता है, ठीक है, और 60 मिनट आवर बनाता है, ठीक है। तो आर में अगर मैं 60 ऐड करूं, मतलब इनटू करूं, तो मुझे आर मिल जाएगा, और अगर मिनट्स में 60 इनटू करूं तो मुझे मिनट्स मिल जाएगा, और अगर मैं सेकंड्स को नॉर्मली लूं तो वो मुझे सेकंड्स दिखाएगा। और अगर ऐसा बोलें कि हम किसी आर को मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आ रहा है तो डिवाइड मतलब इनटू होगा, ठीक है। और अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लीज डिवीजन होगा, सॉरी डिवीजन होगा। ये नहीं सर, मीन्स जैसे अगर 3 आवर्स में बोलूं, आई एम हैविंग 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं, ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो उसका मीनिंग क्या है, 3 घंटे में कितने मिनट्स हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स, दूसरे घंटे में 60 मिनट्स, तीसरे में भी 60 मिनट, 60 60 60 तो 180 हो गए, 180 है ना। तो ऐसे ही अगर मैं इनटू किया मैंने 3 को 60 से, है ना, 3 को 60 से इनटू किया तभी मुझे जाके मिनट्स मिले। अगर ऐसे ही अगर 180 मिनट्स को मैं डिवाइड करूं, अगर मैं 180 को मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं, तो 180 ओके, या फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, बस वही मैं बोलना उसके चाह रहा ऊपर हूँ। या ठीक है। अब दूसरा है इनपुट कॉस्ट, तो यूजर से इनपुट लो कॉस्ट, डिस्प्ले द कॉस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। अब मुझे कॉस्ट का 25% इंक्रीज करके दिखाना, जैसे मैं मेरी कॉस्ट है, लेट सपोज मेरी कॉस्ट प्राइस, मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। अब मैं उसकी 25% इंक्रीज करना चाहता हूँ कॉस्ट को, तो वो हो जाएगा 125। तो कैसे हुआ 125, उसका 25% निकालूंगा 100 का, तो 25 आएगा, और उस 25 को मैं 100 में ऐड कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 125, ठीक है। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला गिवन है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, तो हम इसको फॉर्मूले को यूज करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक दूसरी स्लाइड पे, उसमें भी थोड़े बेसिक्स हैं बेसिकली। तो ये पाइथन मतलब ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं, मतलब सेम है, 2-3 चीज़ें मिस आउट हो गई होंगी, तो वी विल जस्ट सी दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, और this slideshow is visible now? जी. Okay. Now you can see here, these are your character sets. A set of valid characters recognized in Python. Python uses the traditional ASCII character set. मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ ASCII characters क्या होते हैं और उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना? वो जो 65 ए की वैल्यू 65 होती है, उसको बाइनरी में हम चेक करते हैं, फिर वो बाइनरी ए में कन्वर्ट होता है, या नंबर्स जो होते हैं वो भी बाइनरी फॉर्म में होते हैं, सिंबल्स आर आल्सो इन बाइनरी फॉर्म, स्पेशल सिंबल्स आर आल्सो इन बाइनरी फॉर्म, और कीबोर्ड्स की जितनी भी कीज हैं, जैसे वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, न्यू लाइन, और कीबोर्ड में जितने भी पेज अप, पेज डाउन, होम एंड डिलीट, बैक स्पेस, शिफ्ट, कैप्स लॉक, जो भी एक बटन्स हैं उनके सबके क्या होते हैं, आस्की कैरेक्टर होते हैं। तो पाइथन क्या करता है, इन आस्की कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। देन जैसे ये मैंने कोई 2 वेरिएबल्स ले लिए,
वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो मैंने डायरेक्टली वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन यू आर हैविंग रॉ इनपुट फंक्शन। तो देखना यहाँ पे रॉ इनपुट, यहाँ पे स्टेटमेंट बोलिए रॉ इनपुट फंक्शन इज डेप्रिकेटेड इन पाइथन। तो जो रॉ इनपुट है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है पाइथन 3 में। मतलब मैंने यही चीज बताई थी आपको जी कि पाइथन 3 के पहले रॉ इनपुट जी यूज जी। होता था, अब पाइथन 3 में और उसके बाद में कला इनपुट। अब इनपुट यूज होता है। मतलब पाइथन 3 के जी बाद डेप्रिकेटेड मतलब खत्म हो गया पाइथन की। है ना, मतलब रॉ इनपुट खत्म ठीक हो है चुका है, अब यूज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। फिर भी यहाँ पर वही चीज जो मैंने वहां पर बताई थी प्रोग्राम में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। जैसे एंटर योर एज, तो जो एज होगी वो रॉ इनपुट के फॉर्म में होगी, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी। अब उस स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। वैसे ही मैंने परसेंटेज ली, वो भी स्ट्रिंग में होगी, उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। फिर जो भी ऑपरेशन करना है मैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको आउटपुट जनरेट करूंगा, जैसे हमने प्रोग्राम करके ठीक देखा, है। ठीक है। अब कभी भी ये नोटिस करना, जैसे ये है एग्जाम्पल गिवन है एंटर योर एज। तो ये जो एंटर योर एज है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ठीक है। इस जी स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक 35 है। को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, मतलब पहले स्ट्रिंग था फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो एज अब क्या हो गया 35, ठीक है। हम्म, तो अब एज 35 हो गया, 35 प्लस 2 तो 37 देगा। तो 37। अगर यहाँ ठीक पर है। मैं ये इंट नहीं लिखता, क्या अगर मैं यहाँ पर इंट नहीं लिखता, ठीक है, ऐसे इनपुट तक छोड़ देता, तो क्या होता, जो एज होता वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता, ठीक है। जो एज होता वो ठीक है। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता, और मैं स्ट्रिंग को किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, 2 के साथ। तो 2 के साथ। कभी भी दो डेटा टाइप को आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। एक स्ट्रिंग का टाइप है और एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को आप कभी भी मर्ज नहीं कर सकते या मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। दोनों का डेटा टाइप सेम ठीक है। होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है, इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ा, आई हैव टू यूज इंट, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज इंट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यू आर हैविंग स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज टोकन। तो जो भी आप प्रोग्राम में कंसिडर करो, चाहे ए हो, चाहे इक्वल टू हो, चाहे 5 हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे कोई सा भी कीवर्ड हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो प्रोग्राम में, हर एक चीज टोकन कहलाती है। जैसे मैंने कल बोला था, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। each and everything जी is an object in language, in each and every language each and everything is an object। चाहे वो क्लास हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे मेथड हो वो भी एक जो ऑब्जेक्ट है, फंक्शन और मेथड। चाहे जी कुछ भी हो, फंक्शन हो मेथड हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। बट पाइथन में एक ठीक है। दूसरा टर्म उन्होंने दिया है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है पाइथन प्रोग्राम में उसको क्या बोलते हैं, टोकन। तो टोकन। टोकन, अब वो टोकन क्या है, कीवर्ड भी हो सकता है, आइडेंटिफायर भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, ऑपरेटर भी होता है, पंक्चुएटर भी हो सकता है। तो की वर्ड्स क्या होते हैं, हम उस पर आते हैं। keywords are reserved words of a compiler interpreter which cannot be used as identifier। तो कभी भी देखना, if you are using print, ठीक है, तो print को कभी भी आप you cannot use print according to your wish और अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। कभी भी आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ठीक हो है। प्रिंट को। प्रिंट पाइथन में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, प्रिंट जो है वो पाइथन में ठीक ऑलरेडी है। प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो जी वो एक क्या है, रिजर्व वर्ड है, जी। रिजर्व वर्ड है, और या उसको हम कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का मतलब रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है, जिसको आप कभी भी जी चेंज या नहीं कर सकते, ठीक है, या उसको आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जी तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जितने भी हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ा मतलब मेमोराइज करना नहीं है, लेकिन एक ग्लिम्स होना चाहिए कि हाँ कौन से कीवर्ड्स है, ताकि हम उनको एज एन आइडेंटिफायर ना यूज करें। तो कभी कभी क्या होता है, हम बाय ठीक है। मिस्टेक कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज करने लगते हैं। हमें पता नहीं होता है वो कीवर्ड है, लेकिन बाय मिस्टेक हम यूज करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन से कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जैसे एंड, एज,
finally, for, from, global, if, continue, def, For- elif, else, is, lambda, yield, with, while, try, return, raise, तो ये जितने भी हैं, हाँ, ये सारे कीवर्ड्स हैं. एक बार गो थ्रू करना. ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ शेयर की ठीक है. है. आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीडीएफ. ठीक है. अब हम आते हैं आइडेंटिफायर्स के ऊपर. तो आइडेंटिफायर्स क्या हैं? वो वर्ड्स हैं जो हम यूजर डिफाइन कर रहा है. ठीक है. उनको, जैसे मैं यूजर ठीक हूँ, है. आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम, और मुझे कोई वेरिएबल का एक नाम देना है, तो आई कैन गिव एनी नेम सच एज ए बी सी डी और एक्स वाई जेड. मैं कुछ भी उसमें आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन मी. ठीक है. तो यहाँ पर आई एम हैविंग Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or other object. ठीक है. Python एक आइडेंटिफायर है. नहीं, Python का जो आइडेंटिफायर इज नेम, ठीक है. जो हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, हम्म. फंक्शन को असाइन कर सकते हैं, क्लास को असाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल को असाइन कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओन विश. मैं अपनी विश से उसका कोई भी नेम दे सकता हूँ. ठीक है. उसका नामकरण कर सकते हैं, हम कुछ भी उसका नेम दे सकते हैं. ठीक है. ठीक है. जस्ट वेट अ सेकेंड. हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, बिकॉज नाइट में क्या होता है कि आई एम डूइंग द जॉब इन द इवनिंग, तो ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट उसमें चला जाता है जॉब में, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में. तो ओके. वन फिर सेकेंड. यहाँ आपके यहाँ अनलिमिटेड नहीं होता जैसे, अनलिमिटेड आई एम नॉट ये हैविंग. कितना महंगा पड़ता है वहाँ पे? कहाँ पर? यहाँ इंडिया में महंगा पड़ता है अनलिमिटेड? नहीं, अनलिमिटेड महंगा नहीं पड़ता है, बट सी, इन माई फैमिली अदर्स आर हैविंग द हैंडसेट, so they are ओके. already having the internet. So what I say I ओके. do, I am already having 1 year plan. तो मेरे पास क्या है, 1 year का ऑलरेडी प्लान है. तो अभी मैं क्या उसको ओके. अनलिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे. तो मैंने ऑलरेडी हाँ. 1 year का प्लान परचेज कर रखा है. तो व्हाट आई डू इज दैट, जब भी उसका इंटरनेट ओवर हो जाता है, तो आई यूज टू टेक द इंटरनेट फ्रॉम अदर पीपल. तो ओके. शेयरिंग इज केयरिंग. तो शेयरिंग इज या केयरिंग काइंड ऑफ थिंग हो जाता है. ठीक है. वो यहाँ पे जैसे वाईफाई जैसे देते हैं ना, तो यहाँ हाँ पे थोड़ा जैसे फ़ोन वगैरह, एक तो जैसे अपने अपने जैसे हैंडसेट का बोल तो अलग से होता ही है डाटा, हाँ और जैसे हर घर में ही चाहे लगा ही होता है जैसे वाईफाई, हाँ जैसे अपने घर वाला फ़ोन नहीं होता जो लोकल लैंडलाइन, हाँ हर घर हाँ में जैसे एक फ़ोन तो होता ही है, हाँ हाँ तो उसके साथ फिर वो जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे टेरेस चॉइस इस तरह हाँ कुछ हाँ नाम है, हाँ 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 जैसे अपने इंडिया में हाँ कुछ भी है, हाँ हाँ. तो वो देते हैं उसके साथ ही वो दे देते हैं जैसे वाईफाई, तो वो थोड़ा लाइक चीप भी पड़ता है, और या ओके. उसका काफ़ी जैसे अनलिमिटेड वाईफाई तो होता ही है फिर 24 आवर, वो थोड़ा चीप पड़ता है यहाँ पे. नहीं, यहाँ पर भी एक्चुअली क्या है कि हमने पहले वाईफाई यूज किया था, वही लैंडलाइन वाला फोन जो है ना, तो जी. वाईफाई यूज कर चुके हैं वो. बट उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी हमारे टाइम पे, मतलब बहुत पहले की बात है, कि हुँ. उन्होंने क्या है कि हमने उसको यूज नहीं किया. ठीक है. तो दे चार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, कि यू हैव नॉट यूज दैट पर्टिकुलर इंटरनेट, तो हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. तो हमने उसके बाद से क्या किया, वी आर नॉट यूजिंग दैट वाईफाई. तो हमने जी. उसको बोला कि यू डिस्कनेक्ट दिस कनेक्शन वेन एवर वी जी. नीड. तो हम मोबाइल में ही रिचार्ज करवा देंगे. वी विल रिचार्ज इन द मोबाइल ओनली एंड वी विल यूज इंटरनेट फ्रॉम दैट ओनली. सो जी. वी डोंट रिक्वायर वाईफाई ऑफ योर कंपनी. तो हाँ, ये तो नाउ. यहाँ पे तो ये है ना, क्योंकि टीवी वगैरह पे भी फिर ये अपने जैसे इंडिया में सब केबल वगैरह लगा लेते हैं, हाँ यहाँ पे हाँ. केबल है लेकिन मोस्टली यहाँ पे बच्चे जो यहाँ के जैसे बॉर्न है या कोई भी है, यहाँ पे हम्म, नेटफ्लिक्स वगैरह ज़्यादा चलता है जैसे है ना, फिर वो हाँ. वाईफाई हर जगह पे, क्योंकि घर पे इसलिए वाईफाई ज़रूरी नहीं, तो सिर्फ हम्म, हैंडसेट तो होते ही हैं, हम्म, ज़रूरी तो नहीं होता घर पे हाँ, या बाहर, लेकिन जैसे टीवी वगैरह जब कुछ भी चलता है तो फिर वो वाईफाई के थ्रू ही चलता है एवरीथिंग, तो एंड इसलिए देयरफॉर. कुछ चैनल्स है ना. हाँ, अंडरस्टैंड, वो जी. समझ गया मैं. वो अब पूरा ही एक वाईफाई लगवा, यू यूज दैट वाईफाई, और ईच एंड एवरीवन विल यूज वाईफाई. या सही है. या बट घर पे. हाँ, बट कोविड के पहले क्या था कि हम लोग वी वर ऑल वर्किंग. तो हम क्या है, वी वर गोइंग टू ऑफिस. तो वहाँ पर हाँ, वी डोंट या रिक्वायर द इंटरनेट. तो ऑफिस ही हमको सारा इंटरनेट या प्रोवाइड करता है. अब क्या है कि वी हैव टू यूज इंटरनेट बाय आवर ओन सेल्फ. तो नाउ वी आर फीलिंग या दैट इट इज बिट लेस. पहले हमको लगता था नहीं, सफिशिएंट है.
अब क्या लगता है, इट इज वेरी मच लेस। क्यों? हाँ, क्योंकि हमको कंटिन्यूअसली इंटरनेट पे वर्क करना होता है। काम पहले क्या करना होता होता है है, जी। और ऑफिस में क्या होता था, वी वर यूजिंग इंटरनेट ऑफ ऑफिस, तो यू आर या नॉट नोइंग कि क्या कि होगा, तो सिर्फ फोन में ही चाहिए। फोन में ही जी। चाहिए, तो वो सफिशिएंट हो जाता जी। था। तो इसलिए वो थोड़ा हम्म। अभी होने लगा है। That's why। ठीक है, या मैं एक दूसरा भी हैंडसेट रखूंगा साथ में, ताकि whenever the internet is unstable, so that I can use that, है ना? ठीक है। और तो बैक टू द टॉपिक। तो टॉपिक पे क्या था कि हम आइडेंटिफायर देख रहे थे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में क्या था कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं हम अपने मन से, ठीक है, थ्रू अवर विश वी कैन असाइन अ नेम। तो एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर ए टू जेड, और ए टू जेड और एन अंडरस्कोर फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स। तो हम आइडेंटिफायर को कैसे भी नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहो अंडरस्कोर देना, तो यू कैन गिव अंडरस्कोर आल्सो। जैसे आई एम राइटिंग हेयर आइडेंटिफायर्स, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ आइडेंटिफायर, ठीक है, मैंने ऐसा आइडेंटिफायर दे दिया, तो ये भी वर्क करेगा। ठीक है। ठीक है, ये भी अगर हम ठीक यहाँ है। पे ट्राई करते हैं एक बार, ये अंडरस्कोर एस एस डी इक्वल टू 10, ठीक है। Now you can see I can print this identifier, तो वो परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है ना। आइडेंटिफायर इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल दिया, आई हैव गिवन बी एज एन वेरिएबल, ठीक है, I have given b as an variable, so consider this as like variable only. So you can give variable in this ठीक है। format also. ठीक है। ठीक अब है। एक और चीज है, if you can give 2ab, अगर मैं ऐसे दूं, तो ये क्या वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं, ये क्या है, एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो कभी भी कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। कोई भी वेरिएबल हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल लेटर से ठीक स्टार्ट है। कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको ओके। नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ठीक है। अब मैं या अंडरस्कोर 2as देता हूँ, तो क्या ये सही है? हाँ, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? यस। क्योंकि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? अंडरस्कोर से, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आराम ठीक है। से। ठीक है। अब एक और चीज, मैंने दिया अंडरस्कोर ए डी अंडरस्कोर, तो ये भी वैलिड है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। आपको ऐसे कहीं, मतलब यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ व्हाट यू से एक्सप्लेनेशन, मतलब ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी। क्यों? मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा है इंटरनेट से, या मैंने जी। जब भी मैं ट्रेनिंग करता था या ट्रेनिंग लेता था, या मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता था, मतलब जब मैं ऑफिस में था, तो द ऑफिस पीपल यूज टू गिव अस द ट्रेनिंग। हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट लेते थे, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो हमारे लिए तो सब कुछ नई चीजें हैं, हमें तो पता नहीं है कि जी। कैसे प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो जो हमारे सीनियर होते हैं, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ट्रेन अस, हमको ट्रेन करते हैं, और फिर वो ट्रेनिंग देने के बाद वो हमको बताते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसे वर्क होता है, प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे चीजें यूज करते हैं। तो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ इंटरनेट से पढ़ा है, तो हम तो क्या बेसिक बेसिक पढ़ते हैं इंटरनेट से, है ना। वो बोलते हैं ए इक्वल टू 10, तो हम समझ लेते हैं हाँ ए इक्वल टू 10 ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता, है ना। हम और कोई वेरिएबल जी। यूज नहीं कर सकते, या किसी और फॉर्मेट का वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। लेकिन जब आप रियल टाइम में जाते हो, रियल टाइम इन द सेंस जब आप कंपनी में जॉब करते हो, या कहीं आप ट्रेनिंग देते हो, या आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो, या ट्रेनिंग कहीं से लेते हो, तो भी आपको बहुत कम बताया जाता है, बिकॉज अगर आपको ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक जी। है ना। तो इसलिए जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाते हो, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि यार ये वेरिएबल ऐसा क्यों यूज किया है, मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं है।
मैंने तो हमेशा ऐसा वेरिएबल पढ़ा है, c इक्वल मतलब a इक्वल टू समथिंग या b इक्वल टू समथिंग। तो ये अंडरस्कोर कहाँ से आ ठीक गया, है, ये अंडरस्कोर के बाद नंबर कहाँ से आ गया? पर जब आप रियल टाइम प्रोग्रामिंग में ठीक है। जाओगे, जब आप पाइथन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखोगे इंटरनेट पे, आप सर्च करना इंटरनेट पे पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स ऐसे करके सर्च करना नेट पे, गूगल पे, पाइथन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपको जो पाइथन के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मिलेंगे ना, वहां पर आपको ऐसे ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है। आपको वो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार गो थ्रू करना। पर आपको वो तब समझ में आएंगे जब आप कभी प्रोजेक्ट में जाओगे ना, कभी किसी कंपनी में, जब आप किसी ओके। कंपनी में जाओगे, कुछ डेवलप करोगे, कुछ बनाओगे, तब आपको ये जब ऐसे वेरिएबल दिखेंगे ना, तब आपको कोई अगर बताएगा वहां पर प्रोजेक्ट में कि ये जो वेरिएबल है ये इसलिए यूज हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी यूज होता है, अच्छा ऐसा भी यूज होता है। तो यू विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स। मतलब तभी मैं ठीक आपको है, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। वैसे मैं ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी आपके लिए। आपको क्या लगेगा कि यार ऐसे भी यूज होता है, ऐसे भी यूज होता है, ऐसे। पर अगर आप इफ यू आर कीपिंग दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड, आप जब ये सारी चीजें माइंड में रख रहे हो कि हाँ ऐसे भी यूज होता है, हाँ ऐसे भी, फिर व्हेन यू विल इन योर फर्दर, वो जब आप जाओगे एनीवेयर, तो यू विल गेट थिंग, हाँ अच्छा ये मैंने कभी पढ़ा था, हाँ या आई हैव सीन दिस थिंग अर्लियर आल्सो, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो या तो आप अभी ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ी सी ले लो, आगे आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी, या तो अभी आप जी, सिंपल जी, पढ़ लो और आगे जाके आपको कंफ्यूजन होगी। तो जी। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ये 12 एग्जीक्यूट हो गया। तो वेरिएबल को हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर पहले और अंडरस्कोर बाद में। बात। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें हम नाउ सी सम आइडेंटिफायर्स आर हियर गिवन। तो ये जैसे माय बुक है, ये जो माय बुक है ये करेक्ट आइडेंटिफायर है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। फाइल 123, इसको भी हम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। जी। Z2TD, इसको आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। ये जो अंडरस्कोर है ना, डेट_2, इसको भी हम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। अब हम कौन से आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। हम टू कभी भी पहले नहीं लगा सकते। ठीक है, जी। मतलब नंबर्स कभी भी नहीं लगा सकते आगे। उसके बाद आप कभी भी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते आइडेंटिफायर। ब्रेक क्या था? अब अगर यहाँ पे देखो ब्रेक ब्रेक एक कीवर्ड। वर्ड है, उसको जी, कभी भी आप कीवर्ड था वो। आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आप कभी भी डॉट नहीं यूज कर सकते दो मतलब वर्ड्स के बीच में। ठीक है, आप कभी भी ठीक है, हाइफन यूज नहीं कर सकते दो वर्ड्स के बीच में। आप ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी हाइफन यूज नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। मैंने शेयर तो कर दिया है, एक बार गो थ्रू करना पीडीएफ को। ठीक है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि मुझे ये पीडीएफ जल्दी से कवर करने हैं। बिकॉज ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है अभी पाइथन में। क्लास पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन पढ़नी है। उसके बाद वी हैव टू सी टिंकर, देन वी हैव टू सी फंक्शंस, मेथड्स भी देखना है। देन वी हैव टू सी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वी हैव टू सी ऑल मैनी थिंग्स। तो ये यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स, कहीं पे भी आपको लगे। ठीक है, ठीक है, थ्योरी है, और कहीं पे भी आपको लगे कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी लाइन, तो उसको मार्क करके रखना, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, है ना। ठीक है। आज मैं पढ़ के, हाँ जी, आज मैं पढ़ लूँगी ये सारा कुछ। क्या आपने और वैसे भी समझाया हुआ है, और या मैं समझाया हुआ तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी कभी भी डाउट आए, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, या अपने से कुछ ठीक प्रैक्टिस है। कर रहे हो, या कुछ प्रोग्राम बना रहे हो कहीं से लेके, या कोई कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं पे भी डाउट आए ठीक तो है, यू कैन आस्क। ठीक है, इसके बाद है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? कैन बी डिफाइंड एज नंबर, टेक्स्ट और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। तो जो भी आप नेम या टेक्स्ट या कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिटरल्स। तो लिटरल्स कौन से टाइप के होते हैं? ये जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक ठीक है, है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। फिर उसके बाद ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर लिटरल बोलेंगे इसको बेसिकली, ये पूरे स्टेटमेंट को
इंटीजर लिटरल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोट लिटरल, मतलब ये जो 6.2 है उसको हम फ्लोट लिटरल बोलेंगे। ठीक है। इन वैल्यूज को हम स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट लिटरल्स बोलेंगे। फिर स्पेशल लिटरल्स होते हैं, जो जैसे मैंने बताया था एक नन डेटा टाइप होता है जी। कि जिसमें कोई वैल्यू नहीं जाती है, तो जब हम नन देंगे तो वो एक स्पेशल लिटरल कहलाता है, ठीक है। वो एक स्पेशल लिटरल, वी कॉल इट एज एन स्पेशल लिटरल, ठीक है। देन यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ लिटरल्स, तो स्केप सीक्वेंस आर योर लिटरल्स। अब इनका अपना अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो इफ यू आर गिविंग दीज डबल बैकवर्ड स्लैश, तो इसका मतलब होता है बैक स्लैश, ठीक है। वो ठीक मतलब है। जैसे स्टेटमेंट लिखा और मैंने डबल स्लैश लगा दिया, तो डबल स्लैश लगाने का मतलब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद एक स्लैश आएगा, फिर आगे का स्टेटमेंट लिखूंगा, तो जब मुझे आउटपुट मिलेगा ये वाला स्टेटमेंट स्लैश और ये उसके बाद वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है स्लैश कोट। तो स्लैश कोट का मतलब है वैसे कोट्स जो होते हैं वो कभी सिंगल कोट्स, तो सिंगल कोट जो होते हैं वो कभी प्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे वो कोट्स भी प्रिंट करने हैं, तो अगर आपको कोट्स प्रिंट करने हैं तो यू हैव टू गिव स्लैश एंड कोट, ठीक है। ठीक है। यू हैव टू गिव स्लैश एंड कोट। ऐसे ही डबल कोट्स, अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करना है तो यू हैव टू गिव स्लैश एंड डबल कोट्स, ठीक है। देन आस्की बेल और आस्की बैकस्पेस, फॉर्म फीड, लाइन फीड, कैरिज रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैब। तो ये क्या होता है, जैसे स्लैश एन जो होता है वो लाइन चेंज होता है, स्लैश, ये तो यूज किया हुआ है। हाँ ये तो यूज किया हुआ जावा वो में। है ना, हाँ सेम उसकी तरह ही है बिल्कुल। तो ठीक है। कभी भी यूज करना है इनको तो एक साथ यूज करके देखना, पता चल जाएगा कि इनका क्या मीनिंग है। तो बी का मीनिंग होता है बैक स्पेस, पीछे चला जाएगा। फॉर्म फीड का मतलब फॉर्म को आगे लेके जाएगा, ठीक है। लाइन फीड का मतलब एक लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। कैरियज रिटर्न मतलब जो भी नंबर होगा उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस वो रिटर्न करेगा आपको। फिर हॉरिजॉन्टल टैब मतलब टैब दे देगा, जैसे कीबोर्ड में टैब होता है ना, 6 स्पेसेस आगे बढ़ जाता है कर्सर, तो कर्सर 6 स्पेसेस आगे बढ़ जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल टैब बोलते हैं। ऑक्टल ठीक है। वैल्यू और ये सारी चीजें, ये तो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, बाकी नीचे वाले ऑक्टल और ऐसा वैल्यू कभी देखना, उसके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो अब ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, जी। असाइनमेंट, लॉजिकल, और रहे बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। मुझे ये लास्ट 3 समझाने हैं, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। तो जस्ट ठीक है। सी, रिलेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। लेट्स सपोज 2 मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। A membership operator in Python are used to validate whether a value is found within a sequence such as string, list और tuple। तो किसी भी string और tuple या list में अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इन ऑपरेटर यूज करूंगा। यहाँ पे ठीक है। एग्जांपल में देखना, आई एम यूजिंग लिस्ट हेयर और मैंने एक वेरिएबल लिया 2, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, I can just copy this part। What was this? Relational operators. So I have already used.
Now you can see here a equal to 22. Okay, I'm having a variable 22, or I have created one list. Okay, I'm having two things. Then what I'm doing is that I'm asking that the value of a in list, अगर जो a की कोई भी वैल्यू हो, लेट सपोज 22 है, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो 22 लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगी, ठीक है। ठीक है। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो इस वाले वेरिएबल में ऐड कर देगी, ठीक है। ठीक है। दो चीजें। उसके बाद वी विल ट्राई टू प्रिंट दिस थिंग। मेंबरशिप, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो चेक करता है क्या वो उस चीज में अवेलेबल है कि नहीं। तो उसने पहले दिया ट्रू। ट्रू क्यों दिया, इसके लिए उसने ट्रू दिया क्योंकि टू जो है वो प्रेजेंट है लिस्ट में, ठीक है। और उसने बोला क्या ए तुम प्रेजेंट हो लिस्ट में, उसने बोला पूछा, तो ए नॉट इन लिस्ट, नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ए फॉल्स है क्योंकि ए तो प्रेजेंट है लिस्ट में, ए तो प्रेजेंट है लिस्ट में, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू दूँ 23, तो क्या 23 प्रेजेंट है, नहीं, तो यहाँ पर क्या देगा फॉल्स, पहली वाली उसमें फॉल्स देगा, दूसरे वाले में क्या देगा ट्रू, बिकॉज 23 तो है ही नहीं, यस 23 नहीं है लिस्ट में, मतलब हम सही बोल रहे हैं कि ए नॉट इन लिस्ट, अगर 23 नहीं है लिस्ट में हम सही है, तो वो ट्रू देगा यहाँ पर। जी। अब इसमें देखना आउटपुट पहले फॉल्स दे रहा है क्योंकि जो 23 है वो नहीं है लिस्ट में, ठीक है, फॉल्स है, नहीं प्रेजेंट है। और ए जो है 23 नॉट इन लिस्ट, तो क्या 23 ट्रू है क्योंकि 23 नहीं है लिस्ट में, हम सही हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ट्रू है, तो उसने ट्रू दे दिया। जब भी वो कॉन्ट्राडिक्ट करे तो नॉट इन, और जब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे तो वो इन, मतलब एक तरीके से ट्रू और फॉल्स जैसे होता है ना, बूलियन बूलियन वैल्यूज होती है, सिमिलरली इन और नॉट इन, पर डिफरेंस क्या है, बूलियन क्या है उसी वैल्यू को चेक करता है जो आपने पास की है, पर जो इन ऑपरेटर होता है वो किसी दूसरे में अपना एग्जिस्टेंस चेक करता है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है क्या यहाँ पर है कि नहीं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। वो चेक करता है अपना एग्जिस्टेंस, मेरा यहाँ पर एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं है, तो वो अलग अलग जगह पे अपना एग्जिस्टेंस चेक करता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, ठीक है, कंटिन्यूस, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। इन पाइथन कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी लोकेशन पे चेक करता है। तो इसका मीनिंग समझना, इज रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दो वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रू देगा। ठीक है। और इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या करेगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे लिखा है, जैसे इंडिया जो है वो STR1 में है, और ये जो इंडिया है वो भी वो STR2 में भी है, टू में भी सेम ही है जी। सेम ही है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो वो ट्रू देंगे, और अगर मैं उसको पूछूंगा कंपाइलर से कि क्या जो STR1 है वो क्या उसी सेम है, इज एज स्ट्रिंग टू सेम। हाँ, स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है जो स्ट्रिंग 2 पॉइंट कर रही है, जिसको मतलब STR1 उसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है जिस स्ट्रिंग को STR2 पास कर रही है। अगर यस तो वो ट्रू देगा, अगर वो उसको पॉइंट कर रही है तो ट्रू देगा, और अगर नहीं पॉइंट कर रही है तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। ठीक है। इसको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। STR इक्वल टू, यहाँ पर दिया दिया, और STR2 को हमने फिर से इंडिया दिया,
ठीक है। अब हमने पूछा क्या str1 इज str2, क्या जो str1 है वही str2 है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर पास करता हूँ, मैं अलग से नहीं लिखता हूँ दो बार। अगर ट्रू होगा तो वो प्रिंट कर देगा ट्रू। ठीक है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेपरेटर लगाते हैं यहाँ पे, ताकि पता चले ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने ये एक लाइन बना दी ताकि मुझे समझ में आए कि ये सेपरेट कर रहा है इसको को यहाँ से। जैसे ये ट्रू फॉल्स के ऊपर वाले के लिए, इसके लिए जी फिर ये लाइन प्रिंट हुई, और ये जो ट्रू ठीक आया है। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है। अब ठीक ये है। इंडिया है। जी ठीक है। अब str1 इंडिया है और str2 इंडिया है, तो उसने ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ जी पर ये कर दूं, ठीक है, कनाडा, तो क्या इंडिया कनाडा है क्या? नहीं। नहीं, तो तो ऑटोमेटिकली फॉल्स आएगा। ऑटोमेटिकली फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स आ गया। ठीक है। अब थोड़ा वेरिएशन करते हैं इसमें। अब यहाँ पे नॉट लगाते हैं, str1 इज नॉट str2, इंडिया कनाडा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इंडिया कनाडा नहीं है, सही है ये। सही है स्टेटमेंट, तो ट्रू सही देना है ये, चाहिए। ट्रू। जी तो ये ट्रू दे दिया उसने, है ना। जी अगर यहाँ पर हम इंडिया इंडिया करते और यहाँ पे इज नॉट करते तो फॉल्स देता। जी इसके बाद प्रोग्राम है यहाँ पर, ये भी वही प्रोग्राम चेक कर रहा है, इफ ए इज बी तो इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स एल्स वाला प्रिंट होगा। डिफरेंट। जी अब बस इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पर इंडेंटेशन होना चाहिए, यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं दिया है तो वो एरर जनरेट करने लगेगा जब भी हम लिखेंगे ना। जी तो हमारी क्या आदत होती है, जैसा होता है उसको देख के वैसे ही लिखते हैं। तो ये इंडेंटेशन कहलाएगी, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको स्पेस दे दिया यहाँ पर। अब इसके बाद है जो मैं हम टोकन्स पढ़ रहे थे, तो टोकन्स में हमने क्या क्या देखा था, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और पंचुएटर्स हम ये देख रहे हैं। और हमने क्या देखा था, और उसके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। ये लास्ट टॉपिक है, पंचुएटर्स। तो जो भी पाइथन में सेमी कॉलन या कोट्स या डबल कोट्स या ब्रैकेट्स या कमेंट्स या असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कुछ भी यूज होता है, कॉलन सेमी कॉलन, तो ये सब क्या है, पंचुएटर्स हैं। जैसे जावा में पंचुएटर्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, सेमी कॉलन, कॉलन, डबल कोट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम पंचुएटर्स यूज करते हैं। वो कि उसको क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल पंचुएटर्स और सिंटेक्स। जो ग्रामेटिकल पंचुएटर्स और सिंटेक्स हम उसको बोलते हैं। सिंटैक्स। ठीक है। अब जैसे हमारे पास, मैं इस प्रोग्राम को अभी नहीं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें फंक्शंस हैं। ये एक फंक्शन होता है, डेफ को, फंक्शन को हमेशा हम डेफ से डिफाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं ये ना करवा के, जब मैं फंक्शंस पे आऊँगा तो फंक्शन ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये भी बेयर बोन है, वेरिएबल्स क्लियर हैं, लोकल वेरिएबल, इसको भी फंक्शन के अंदर ही बताना पड़ेगा।
डायनेमिक टाइपिंग सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर को भी अगले क्लास में। तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम 2-3 चीज़ें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम फंक्शंस करेंगे, ठीक है, ठीक है, और फंक्शंस के बाद क्लासेस करेंगे, क्लासेस के बाद हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम कर देंगे एंड प्रोग्राम्स देख लेंगे उनके ऊपर। तो मैं एक काम ठीक है, करूँगा, आई विल डू वन थिंग, आई विल शेयर वन, जो भी मेरे पास, आई विल सर्च PDF which I have created। अगर उस PDF में if I am able to search functions, classes, object, तो I will forward that thing to you, so you can go through ओके, that, you can go through that, और हम उसको कल एक बार अच्छे से प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, पूरा प्योर प्रैक्टिकल, ठीक ठीक है। है, फंक्शंस, क्लासेस, ठीक ऑब्जेक्ट्स, है, ये पूरा प्योर प्रैक्टिकल है। तो मतलब यहाँ से ठीक है, समझा भी दूंगा, if I will explain you from here, तो again you will forget, तो I need a thorough class of this, मतलब एक अच्छे से। एंड आई थिंक सो टाइम इज ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर, तो हम इसको वाइंड अप भी कर लेते हैं। और जी। कुछ डाउट आप ये है मेरे तो को सेंड सेंड हाँ, कर देना PDF, ये वाली जो सेकंड वाली थी। ये वाली तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ना यस्टरडे, यस्टरडे यू ये कैन सी। वाली नहीं थी। वो एक पहले वाली थी, ये वाली प्रेजेंटेशन कहाँ गई? ये एक थी, ये वाली प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एक ये सेकंड, वाली तो थी। हाँ इसके बाद जो कल मैंने फिर से शेयर की ना, वो ये अच्छा, वाली वो है, वाली ठीक है, वो ये वाली है, जो मैंने कल शेयर की वो ये ठीक है, वाली है। आज मैं एक और ठीक है, सर्च करूंगा, क्लासेस, फंक्शंस ठीक और है, ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए प्रायर क्या करूँ, तो यू कैन स्टडी देम प्रायर, मतलब मैं शेयर कर दूँ, ठीक यू है, मैं कैन, गो थ्रू कर लूंगी जी। हाँ गो थ्रू कर, थ्योरेटिकल पार्ट या हाँ हाँ, ताकि एटलीस्ट व्हेन यू आर, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो यू शुड नो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, you should ठीक have है, some glimpse of that कि yes I know this part। ठीक है, ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क और वी कैन वाइंड अप द क्लास। ठीक ठीक है, कुछ है, डाउट ठीक है? है, हाँ जी। नहीं, नहीं नहीं ना, डाउट नहीं आज तो। ठीक है, नहीं, ओके, बाय बाय, गुड डे, बाय बाय, बाय। बाय, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। बाय।